یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نئی دلی میں پیریگوئے کے صدر کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت، دو طرفہ رشتوں کو مزید مستحکم کرنے سے کیا اتفاق۔ اہم شخصیات راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقی، عوامی نوعیت کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ وکست کرشی سنکلپ ابھیان کے تحت پورے جموں کشمیر میں بیداری پروگراموں کا انعقاد جاری، اور ماتا کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل، کافی تعداد میں پنڈت برادری کے لوگ پہنچ رہے ہیں تلملا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں پیریگوئے کے صدر سینٹیاگو پینا پیلاسیوس کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی اور دو طرفہ رشتوں سے مستحکم کرنے سے جڑے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، زراعت، دفاع، ریلویز، خلا اور دیگر شعبوں میں کافی وسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملک متحد ہیں۔ پیراگوئے کے صدر جو بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت منڈپم نئی دلی میں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی 81ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी हैं। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। آپریشن سندور کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے، نیز دہشت پسندی کے خلاف بھارت کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ان دنوں ارکان پارلیمان پر مشتمل 7 کل جماعتی وفود مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ این سی پی شرد پوار گروپ کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سولی کی قیادت میں کل جماعتی وفد مصر پہنچ گیا ہے۔ وفد نے ایتھوپیا کا دورہ مکمل کیا۔ جے ڈی یو کے ممبر پارلیمنٹ سنجے کمار جھا کی سربراہی میں ایک کل جماعتی وفد نے ملیشیا کے قومی اتحاد کے نائب وزیر کی قیادت میں پیپلز جسٹس پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ بات کی۔ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی سربراہی میں ایک اور کل جماعتی وفد نے برطانیہ کی وزیر خارجہ پریتی پٹیل اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی اور سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے میں بھارت کے پختہ عزم سے انہیں واقف کرایا۔ آپریشن سندور کی کامیابی پر قوم ہتھیار بند فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز نے بھی بہادر فوجی جوانوں کو خراج پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم پرم ویر چکر ایوارڈ یافتہ کمپنی حوالدار میجر پیرو سنگھ کو یاد کر رہے ہیں۔ پیش ہے آکاشوانی دلی کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ 1918 میں راجستھان میں جنمے کمپنی حوالدار میجر پیرو سنگھ 1936 میں 6 راجپوتانہ رائفلز میں بھرتی ہوئے۔ جولائی 1948 میں جموں کشمیر کے ٹتوال سیکٹر میں ایک سینیہ ابھیان کے دوران جب ان کے ادھکانش ساتھی یا تو شہید ہو چکے تھے یا گھائل ہو گئے تھے، پیرو سنگھ جب دشمن پر حملہ کر رہے تھے تبھی ان کے سر میں گولی لگ گئی۔ میجر پیرو سنگھ کا یہ ادویتیہ ساہس اور اٹوٹ سنکلپ ویرتا کی ایک مثال بنا اور انہیں مرنوپرانت پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا۔ ثقلین اختر، آکاشوانی سماچار، دلی۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ محبوبہ مفتی نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد اور وادی میں کشمیری پنڈت برادری کی باعزت واپسی اور بازآباد کاری سے جڑے معاملات پر ایل جی کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ کشمیری پنڈت برادری کو وادی واپسی کی وکالت کرتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا، میں کل جاؤں گی ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب کا ہمیشہ یہ بڑا سیریس تھا ان کا کہ کشمیری پنڈت واپس آنے چاہیے۔ پی ڈی پی نے اس کو اپنے ایجنڈے کا ایک حصہ بنایا ہے، چاہتے ہیں کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے بلا خوف کے واپس آئے، اور یہ کام خالی سرکاری لیول پہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں لوگوں کو بھی جھک جانا پڑے گا۔ جیسے ہمارا ایجنڈا ہے پیس ود ڈگنیٹی، ریزولوشن آف ایشوز۔
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तेलंगाना के यौम तासीस पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। भद्रवा कस्बे में इन दिनों बड़े पैमाने पर लेवेंडर की काश्त की जाती है और कस्बे में काफ़ी तादाद में काश्तकार इसके साथ वाबस्ता हैं। भद्रवा में CSIR IIM की तरफ से मुनअक़िद किया गया लेवेंडर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लेवेंडर की काश्त की तरफ रागिब करना था। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेस्टिवल के दौरान खिताब करते हुए कहा कि लेवेंडर ने भद्रवा को एक कौमी शनाख्त बख्शी है। भद्रवा की इन हसीन वादियों में जहां कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी चर्चाएं चल रही थी, आज लेवेंडर के फूल की महक सारे हिंदुस्तान तक पहुंची और ये लेवेंडर का फूल ये आज भद्रवा की शिनाख्त बन चुका है सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया। और इसके लिए फख्र है आप सबको भी, हमको भी। अगर लेवेंडर ना होता तो मन की बात में ये जिक्र ना होता और आज जगह जगह इसका चर्चा ना होता। विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जारी है। अभियान के तहत किसानों को मुख्तलिफ फसलों की जदीद तर्ज पर काश्तकारी से मुतल्लिक तौर तरीक़ों से रूशनास किया जा रहा है। इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटियों और मुतल्लिका महकमे की तरफ से प्रोग्रामों का इनकाद करके किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अभियान के ताल्लुक से जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 टीमें बनी हुई हैं जो एक दिन में 3 लोकेशंस पे जाते हैं। जो मेरे पास डाटा है 264 विलेजेस हमने टच किए हैं 180 लोकेशंस पे और 20,873 जमींदार भाइयों से हमने सीधे मुलाकात की। मकसद यही है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट्स के पास, KVKs के पास, यूनिवर्सिटी के पास, ICR इंस्टीट्यूट्स के पास, वो बराह रास्त इन जमींदार हजरात के पास पहुंचे और अगर उनका कोई ग्रीवियंस होगा तो वो हमें मालूम पड़ जाएगा और उसका तदारुक किया जाएगा। अभियान के तहत आज गढ़वेल कुकरनाग में कबायली तबके के किसानों के लिए एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर MLA चौधरी जफ़र ने कहा कि हुकूमत कबायली तबके को जदीद टेक्नोलॉजी और स्कीमों से हमकिनार करा के उनकी बहबूदी की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों और माहिरीन के माबैन दूरियों को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। सेहत व तबी तालीम के वज़ीर सकीना इतू ने आज बीरवा हल्के में बॉयज़ हाई स्कूल भटपुरा मागाम की नव तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए से तामीर की गई है। हमारे बडगाम के नुमाइंदे शौकत शाह से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार सेहत और तालीम के साथ साथ हर सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। हमारे इस जो सरकार है, इस सरकार की कोशिश जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की कोशिश है चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई भी और सेक्टर की बात हो, वहाँ पे हमारी कोशिश है कि लोगों को जो है डोर स्टेप्स पे हर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए और जितना हम एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे पाए, ज्यादा से ज्यादा तालीम को आम कर सके। इस मौके पर MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी और MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार भी मौजूद थे। गांदरबल ज़िले के तुलमुला इलाके में कल मुनअक्किद होने वाले माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मकामी पंडित बिरादरी के साथ साथ जम्मू, दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों से काफ़ी तादाद में श्रद्धालु खीर भवानी अस्थापन पर पहुँच रहे हैं और मकामी मुसलमान पंडित बिरादरी का वालहाना इस्तकबाल करते हैं और यूँ तुलमुला में भाईचारे और मजहबी रवादारी की अजीम मिसाल देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं के लिए क़ियाम, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त और सफाई सुथराई के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, DGP नलिन प्रभात, गांदरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर जतिन किशोर और कई दीगर आला अफसरों ने अस्थापन का दौरा किया। अस्थापन के इर्द गिर्द सलामती के सख्त इंतजामात किए गए हैं। दरियासना डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज गांदरबल का दौरा करके इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। हमारे गांदरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आप देख रहे हो किस तरह का अच्छा माहौल है। सभी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, नागडंडी वाले हो गए, उधर वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया
और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है। हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम बोर्डिंग्स और ये सब भी यहाँ पे है। पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम यूएलवी के हिसाब से काफी ठीक है। और आपके माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि जिसकी भी श्रद्धा हो वो आए, कश्मीर पे उनका आशीर्वाद है और सब अच्छा ही होगा। गांधरबल जिले के बीजेपी सदर गुलाम हसन राठौर ने खीर भवानी मेले के मौके पर अपने पैगाम में कहा, खीर भवानी मेला जो है जरिया बना है हमारे लिए, ताकि हम अपने जो बिछड़े हुए दोस्त हैं, अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं और बहुत सारी माएँ हैं हमारी जो आज मेले में आए हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। और एक जरिया बना है ताकि हम उनके साथ इंटरेक्ट हो जाए। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आजकल ये जो भाईचारा है इसको रेस्टोर करने की। हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर सके कि वो भाईचारा था क्या। मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भाईचारा था जो कि हमारे कश्मीर में था। अस्थापन पर हाजिरी देने वाले पंडित बिरादरी के लोग काफ़ी खुश हैं। कहीं एक ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि वह जम्मू कश्मीर में अमन अमान और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं कर रहे हैं। ये हैं वीना सादोकोल के तासुरात। ज्येष्ठ अष्टमी यानी मेला खीर भवानी के इस त्योहार की वादी के सभी बरादरान को हार्दिक शुभकामनाएं। माता भवानी के आशीर्वाद से सारे कश्मीर में आपसी भाईचारे, खुशी और समृद्धि की लहर दौड़े और जीवन की सारी बाधाएं, मुश्किलात दूर हो जाए। मेला खीर भवानी के सिलसिले में टिक्कर कुपवारा, लोगरीपुरा एश मुकाम, मजगाम और देवसर कुलगाम में भी तकारीब का एहतमाम हो रहा है और वहां भी काफ़ी तादाद में पंडित बिरादरी के लोग हाजिरी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मेला खीर भवानी के मौके पर कश्मीरी पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पंडित बिरादरी के बगैर कश्मीरी समाज नामुकम्मल है। उन्होंने पंडितों की बाइज्जत वापसी के लिए दुआ की। पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों और बुक्काजात पर किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम तर इंतजामात बिलखुसूस बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं ताकि ज़ायरीन को नमाज ईद अदा करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी बड़े इज्तिमा होते हैं वाकई ज़ेर एहतमाम दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, उनमें होती हैं और इसमें सबसे बड़ा जो काम रहता है वो ईद की नमाज होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और वक्त का साथ होना बहुत लाजमी है। इसी सिलसिले में जो मीटिंग हुई उसमें हर एक चीज पे गौर किया गया। छोटी से छोटी चीज ईदगाह में और बाकी इलाकों में साफ सफाई का माहौल होना चाहिए। इसमें कुर्बानी का एक जो अहम जुज है वो इसमें देखा जाता है। हमारे के डिपार्टमेंट मुंसलिक है, इसमें ज्यादातर नजरें वक्फ की तरफ रहती हैं। हर एक चीज पे डिपार्टमेंट ने पहले से ही नजर रखी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ईद उल अजहा की नमाज को कवर करने वाले मीडिया अफराद से कहा है कि वो अपनी तफासिल बोर्ड को पेश करें। बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड के हद इख्तियार में आने वाली मसाजिद और ज़ियारतगाहों पर ईद नमाज को कवर करने की खातिर इजाज़तनामा हासिल करने के लिए ये तफासिल दर्ज करना लाजमी है। मज़ीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7889554566 पर राबता कायम किया जा सकता है। क़बायली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू में ईद उल अजहा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो ईद के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। बानी इस्लाम कश्मीर हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक कल तुज़्को एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी ज़ियारतगाह वाक़िअ खानकाए मौला में दुरूद अज़कार और नात मुनाजात की खुसूसी मजालिस मुनक़्क़द हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लोगों को उर्स के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने लोगों से कहा है कि वो हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल पैरा होकर इंसानियत की बका में अपना रोल अदा करें। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी
सुडानी ने भी लोगों को उर्स शाही हमदान रहमतुल्लाह के मौके पर मुबारकबाद दी है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के ज़िम्न में एक शायर और नुहाख्वां अली मोहम्मद कासमी ने कहा, बदी बात है नशा मस्ती सुरूर गरूर और घमंड को कहते हैं। जब इसी नशे का बायस शराब गांजा चरस और भंग होगा तभी इंसान के शर्म हया के पाक जज्बे का कलाकमा करता है। जिस्मानी एतबार से कलेजा फेफड़ा और जिगर सरतान जैसे मूजी मर्ज के शिकार हो जाते हैं। ऊजे आदम खाकी से हैवानियत के कार्य मजलत में गिरकर इंसानी रिश्तों बाप भाई बेटा माँ बहन और बेटी सबसे बढ़कर जनो शवहर के आदमो हवा के मुतबरक रिश्ते को हैवानियत और अहरमन की आंख से देखता है। श्रीनगर में आज मुतअद्दिद अवामी वफूद ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा से मुलाकात हुए और अपने अपने मसाइल उनकी नोट्स में लाए। वजीर मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इब्तिदा से ही लोगों की फलाह बहबूद और राहत रसानी के कामों में जुटी हुई है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो डेली वेजरों आंगनवाड़ी वर्करों कंटिजेंट पेड मुलाजमिन की इल्तिवा में पड़ी तनख्वाहों के साथ साथ ठेकेदारों के बिलों को भी ईद उल अजहा से पहले वागुजार करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अमलावरी का जायजा लिया। JEE एडवांस इम्तहान के नताइज का आज ऐलान किया गया। इस इम्तहान में कुल 54,378 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं। शोपियां से हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज ज़बरदस्त जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में वहां खड़ी फसलों और मेवों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज।